Hello guys, welcome back to my channel Dream Draft. Learn, think, grow. Today we are going to do the graphical representation of motion. We commonly use two types of motion graphs, that is distance time graph and velocity time graph. As the name says, in which we make graphs between distance and time is distance time graph, and for velocity and time, velocity time graph. Let's discuss them separately. Now, what is distance time graph? In a distance time graph, we have on x-axis there is a time and on y-axis there is distance. Okay, we will discuss the three cases here. The first case is the object is at rest. When the object is at rest, then what type of graph we'll have? We will have a horizontal line parallel to the time axis. As the picture showing here is the horizontal line parallel to the time axis. What is the meaning of this parallel line? This parallel line shows that the distance does not change over the time, which means the object is not moving. और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट के ऊपर है. नाउ द सेकेंड केस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तब क्या, जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी या स्लांटेड लाइन होगी एज शोन इन द पिक्चर. और इसका क्या मतलब है कि जो डिस्टेंस हमने कवर कर रहे हैं वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं. इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है एट अ कांस्टेंट स्पीड और स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगी, स्पीड होगी. Now the third case is for non-uniform motion. For non-uniform motion, what type of graph we will have? We will have a curved line as shown in the picture, which shows that unequal distance in equal time. कि टाइम इंटरवल तो सेम चल रहा है बट उसमें जो डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं वो अनइक्वल हो रहा है. इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद चेंजिंग स्पीड. चेंजिंग स्पीड का क्या मतलब है कि कई बारी उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है. अगर तो इंक्रीज हो रही है देन एक्सेलरेशन हो रही है, अगर डिक्रीज हो रही है तो डेक्लेरेशन हो रही है. क्लियर? हियर वी हैव डन आवर डिस्टेंस टाइम ग्राफ. लेट्स डू द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, on x axis we have time, on y axis we have velocity. We will done three cases here. The case number 1 says when the object moves with uniform velocity, we will have a horizontal line parallel to the time axis as shown in the picture, which means that the velocity remains constant over time. कि उसकी velocity कोई change नहीं हो रही, वो same ही है. So इसकी interpretation क्या है? That the object moves with constant velocity, no acceleration or deceleration. The case 2 says when the object moves with a uniform acceleration, we will have a straight or a slanted line. This line can be upwards or downwards, which means that the velocity increases or decreases uniformly. कि जो velocity है या तो वो increase हो रही है या decrease हो रही है. upward होगी तो upward slope में क्या होगा कि जो positive acceleration होगी, और downward slope में क्या होगा, negative acceleration. ओके जो इसकी स्लोप होगी वो क्या शो करेगी, एक्सेलरेशन. नेक्स्ट केस इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन द ग्राफ इज अ कर्व्ड लाइन एज शोन इन द पिक्चर, which means that the velocity changes irregularly over the time. कि जो velocity है वो चेंज होती जा रही है फॉर टाइम इंटरवल, थोड़े टाइम बाद चेंज हो रही है, उसको बोलेंगे कि velocity changes irregularly. सो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, ड्राइविंग इन अ ट्रैफिक. जब हम ट्रैफिक में होते हैं तो कभी कार स्टॉप हो जाती है, कभी थोड़ी फास्ट हो जाती है, फिर ब्रेक्स लग जाती है, फिर चलती है, फिर रुक जाती है. ये क्या शो कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म acceleration. Done. Now we have area under the velocity time graph.
द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उससे हम एरिया फाइंड नहीं कर सकते, उसमें एरिया नहीं होता, बट जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो एरिया बताता है। जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो किसके इक्वल होगा? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? जो हमारे पास एरिया आएगा वो या तो ट्रायंगुलर होगा या ट्रेपेजॉइडल होगा। फर्स्ट लेट्स टेक इफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। अगर हमारे पास कोई ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन में है और वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, देन द एरिया इज अ ट्रायंगल एंड द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे मैंने आपको बताया कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट। इफ द ग्राफ फॉर्म्स अ ट्रेपेजियम, then the displacement is v plus u by 2 into t, that is average velocity into time. Average velocity क्या होती है? Final velocity plus initial velocity divided by 2 into time, which is same as s is equals to u plus v by 2 into t. Do a comparison table to make it clear to you. So for distance time graph क्या शो करता है? Speed of मोशन, जो मोशन हो रही है उसकी स्पीड बताता है। और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो क्या बता रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ मोशन। जो स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? स्पीड। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है? एक्सेलरेशन। एंड एरिया अंडर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, it does not show any area, but in velocity time graph the area represents displacement. Let's take a quick recap what we have done here, that the graph makes motion easy to analyze. ग्राफ जो है वो हमारे मोशन को रीड करने के लिए बहुत ईजी बना देता है। ग्राफ से हम जल्दी जल्दी हर चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। स्लोप जो है वो हमें क्या देती है? गिव्स अस द रेट, दैट द स्पीड और एक्सेलरेशन। और एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। और द शेप ऑफ द ग्राफ हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मोशन। ग्राफ की जो लाइंस शो होंगी कि स्ट्रेट लाइन है, कर्व्ड है, स्लांटिंग है, वो लाइंस हमें क्या बताती हैं कि किस टाइप का मोशन हो रहा है। जैसे हमने किया था फॉर अ ग्राफ विच शोज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द time axis, then the object is at rest. Or for velocity time graph, the object is moving with uniform velocity. Slanting line shows uniform motion, or in velocity time graph the slanted line show uniform acceleration. For curved line the distance time graph shows non-uniform motion, and for velocity time graph it shows non-uniform acceleration. Thank you. If you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to never miss an update.